हाँ जी, जरा गौर फरमाइएगा। एक्सेल के इस दौर में आज सॉर्ट, फिल्टर और एक एरे फॉर्मूला सीख कर जाइएगा। सीखना हो अगर सामिफ, स्प्लिट एंड ट्रांसपोज फंक्शन तो पिछली वीडियोस जरूर देख कर आइएगा। और शुरू करने से पहले एक बात और कह दूं कि अगर पसंद आए ये वीडियो तो सब्सक्राइब एंड लाइक बटन जरूर दबाइएगा। सब्सक्राइब एंड लाइक बटन जरूर दबाइएगा। और इसी के साथ आज शुरू करते हैं आज की वीडियो। सभी को हेलो, नमस्ते, सत श्री अकाल। तो अच्छा, क्या आप जानते हैं कि एक्सेल का नाम पहले एक्सेल नहीं रखा जाना था? हाँ जी, एक्सेल को पहले एक्सेल नहीं कहा जाना था, इसके कई और नाम भी रखे गए थे, लाइक मिस्टर स्प्रेडशीट, मास्टर प्लान, बिफोर डिसाइडिंग फॉर द नेम एक्सेल। बिकॉज बहुत लोगों को शायद नहीं पता होगा, एक्सेल से पहले एक सॉफ्टवेयर था लोटस 123। लोटस 123 was used in majority, and to cover up that, to make its presence more than Lotus, Microsoft decided to use the name Excel, so that it is a program which is more superior than Lotus. So Excel name रखा गया। सो आज हम शुरू करेंगे सॉर्ट से। डिफरेंट वेज टू सॉर्ट और फिल्टर द डाटा, एंड देन इन द लास्ट वी विल डू एन एरे फॉर्मूला फॉर जस्ट ट्रांसपोज। In the last video, we done the transport using copy paste, paste special, but in today's video, we will use one array formula also to do the transpose function. So first of all, let's start with sort function. How to do sort and filter with these? Let's say you want the departments in alphabetically orders. So these are the departments, and under departments there are different types of category of foods. For different months, I have been given amounts. So first of all, I want to sort the departments in alphabetically order. So how to do that? Click on Home tab, then Sort and Filter. In Sort and Filter, you can see the option Sort A to Z. So it will automatically sort the department from A to Z. And now if I want to sort the largest figures in December month, for December month, just click on any cell in December column. Now go to sort function, and now you can see the function has automatically converted into smallest to largest and largest to smallest. Just press sort largest to smallest. Now it has shown that table according to those figures which are larger in December and then going towards lower in December, and accordingly other data has been sorted. Now you will filter the data so that only the bakery rows appear. I want only bakery items to appear in this table. So how to do that? Just press Ctrl A to select all the table. How to do that? Ctrl A, it will automatically select the table. Now go to sort and filter again. Now you can press the filter button. Once done, you can see the drop down menus on the top of table column. Column heading will also include a drop down menu. Now filter option under department, to view only bakery department entries, click on the department drop down menu. Just uncheck the select all button, and now select only bakery department. Okay, now you can see only bakery entries are here. So if I want to change the department, just select any other department. For example, meat. For meat, only meat items will appear on the table. This was the first way to use sort and filter, and this is so easy. Anyone can use on any table. Now there are many people who type formulas to find amounts that are above average or greater than a certain amount. But there is no need to type the formula when you are using filters, and there is an option in the filters, like on the hotel cell. Click on the filter button, click number filters. Under number filters, you can different filters. Like if I want to calculate show figures which are above average, Excel calculates the average amount of the hotel column and those shows those rows which are greater than the average. So these are the values which are above average. So you can also search according to the greater function. Like on the second filter, on the food cell, click the filter button. Now under number filter, you can search the values greater than or greater than equal to. Like I want to search for those implies
which have expensed on food more than 2500। तो देखो तो सही कौन किस किस एम्प्लॉई ने 2500 से ऊपर खर्चा किया फूड के ऊपर। नाउ इट विल शो द एम्प्लॉइज फॉर विच फूड एक्सपेंसेस इज मोर देन 2500 कि पता तो लगे कि कौन एम्प्लॉय कितना ज्यादा खाता है। 2500 तक एवरेज है कि एक बंदे ने 2500 तक खाया, ठीक है, बट जो बंदा 2500 से ऊपर खा रहा है जो कि नॉर्मल लिमिट से बहुत ज्यादा है, तो मुझे उसका चेक भी देखना पड़ेगा, उसको भी देखना पड़ेगा। ठीक है जी, तो ये फंक्शन था यूजिंग द फिल्टर। तो अलग अलग वेज हैं, आप फिल्टर और सॉर्ट को यूज करके डिफरेंट डिफरेंट वेज को डाटा को प्रेजेंट कर सकते हो। एंड इसमें लास्ट अभी हमारे पास है एरे फॉर्मूला, जिसके साथ हम ट्रांसपोज फंक्शन यूज करेंगे। तो शुरू करते हैं ट्रांसपोज फंक्शन विद एन एरे फॉर्मूला। सो दिखा कितना इजी था सॉर्ट करना, फिल्टर करना। नाउ फॉर द सेकेंड पार्ट आई हैव अ टेबल, मैंने इसके ऊपर फिल्टर लगा दिया है। फिल्टर के ऊपर और क्या क्या कर सकते हैं हम, लाइक दीज आर द डेट्स, एक्सपेंस डेट्स, एंड दीज आर द एम्प्लॉई नेम एंड देयर रिस्पेक्टिव एक्सपेंसेस फॉर ऑन डिफरेंट डेट्स। इफ आई प्रेस ऑन डेट फिल्टर, यू कैन सी नाउ द सॉर्टिंग इज अकॉर्डिंग टू डेट एंड यू कैन सी द डाटा ओल्डेस्ट टू न्यूएस्ट। मतलब जो सबसे पुरानी एंट्री है, सबसे पहली एंट्री है, वो पहले आएगी एंड अकॉर्डिंगली लास्ट एंट्री विल अपीयर ऑन द बॉटम। एंड यू कैन ऑल्सो डू द फिल्टर यूजिंग कलर्स। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जैसे ही मैंने यहां पे जैसे फिगर्स हाईलाइटेड हैं इन येलो, गो टू द फिल्टर ऑप्शन, फिल्टर बाय कलर, you can see the colors which are applied on the table. Once selected, it will only filter those values which are highlighted. So बहुत ही easy हो गया है फिल्टर से अपने डाटा को एक रिस्पेक्टिव, एक रिक्वायर्ड वे में देखना। तो अगर इसको हटाना है, जस्ट सिलेक्ट नाउ क्लियर फिल्टर फ्रॉम होटल, तो होटल के जो एक्सपेंसेस थे तो सारे आ गए। अगर इस पे भी फिल्टर लगा है तो मैं न्यूएस्ट टू ओल्डेस्ट, तो उल्टा हो जाएगा। So accordingly I can do the filters for different options. Okay ji. Now there are many people who type formulas to find amounts that are above average or greater than a certain amount. But there is no need to type the formula when you are using filters, and there is an option in the filters, like on the hotel cell, click on the filter button, click number filters. Under number filters you can different filters, like if I want to calculate show figures which are above average, Excel calculates the average amount of the hotel column and those shows those rows which are greater than the average. So these are the values which are above average. So you can also search according to the greater function, like on the second filter on the food cell, click the filter button. Now under number filter you can search the values greater than or greater than equal to, like I want to search for those employees which have expensed on food more than 2500। तो देखो तो सही कौन किस किस एम्प्लॉई ने 2500 से ऊपर खर्चा किया फूड के ऊपर। नाउ इट विल शो द एम्प्लॉइज फॉर विच फूड एक्सपेंसेस इज मोर देन 2500 कि पता तो लगे कि कौन एम्प्लॉय कितना ज्यादा खाता है। 2500 तक एवरेज है कि एक बंदे ने 2500 तक खाया, ठीक है, बट जो बंदा 2500 से ऊपर खा रहा है जो कि नॉर्मल लिमिट से बहुत ज्यादा है, तो मुझे उसका चेक भी देखना पड़ेगा, उसको भी देखना पड़ेगा। ठीक है जी, तो ये फंक्शन था यूजिंग द फिल्टर। तो अलग अलग वेज हैं, आप फिल्टर और सॉर्ट को यूज करके डिफरेंट डिफरेंट वेज को डाटा को प्रेजेंट कर सकते हो। एंड इसमें लास्ट अभी हमारे पास है एरे फॉर्मूला, जिसके साथ हम ट्रांसपोज फंक्शन यूज करेंगे। तो शुरू करते हैं ट्रांसपोज फंक्शन विद एन एरे फॉर्मूला। हाँ जी, ट्रांसपोज फंक्शन कैसे काम करता है कि जब आपने कोई डाटा आपको रोज एंड कॉलम्स में गिवन है टेबल, एंड यू वांट कि आपको वो चीज डिफरेंट वे में, लाइक जो रोज हैं वो कॉलम बन जाए और जो कॉलम है वो रोज बन जाए, तो उसके लिए कौन सा फंक्शन यूज होता है, ट्रांसपोज। तो इसका फर्स्ट सिंपल वे है कि इसको राइट क्लिक करके कॉपी करो, और फिर जैसे मुझे यहां पे चाहिए इन ट्रांसपोज मैनर, तो राइट क्लिक करके पेस्ट स्पेशल एंड यू कैन ट्रांसपोज द डाटा। बट इसमें दिक्कत क्या है कि अगर मैं ऊपर कोई वैल्यू चेंज करता हूं, फॉर एग्जाम्पल मैंने 50,000 कर दिया प्रोड्यूस में फ्रूट का अक्टूबर मंथ में,
तो नीचे आपको वो चीज शो नहीं करेगी। तो इसके लिए कौन सा फंक्शन यूज होता है? ट्रांसपोज फंक्शन। टू ट्रांसपोज दिस डाटा यू नीड टू सिलेक्ट द सम ब्लैंक सेल फर्स्ट। ठीक है, आपके पास जितनी रोज एंड कॉलम का टेबल है उतनी ही रोज एंड कॉलम इन अ ऑपोजिट मैनर, लाइक जितनी रोज हैं उतने कॉलम सिलेक्ट कर लें और जितने कॉलम्स हैं उतनी रोज सिलेक्ट कर लें। सिलेक्ट करने के बाद फर्स्ट सेल में फॉर्मूला लिखना शुरू करें। फॉर्मूला इज ट्रांसपोज, तो मैं इसको थोड़ा सा व्यू इसको बड़ा कर देता हूं, तो इज इक्वल टू ट्रांसपोज ब्रैकेट स्टार्ट नाउ एरे। एरे मींस आपको टेबल, एरे का सिंपल मीनिंग होता है टेबल, तो पूरा टेबल सिलेक्ट किया। अभी एंटर प्रेस नहीं करना। एरे फॉर्मूला का डिफरेंस सिर्फ यही है कि आपने कंट्रोल शिफ्ट और एंटर प्रेस करना है। तो कंट्रोल प्लस शिफ्ट, पहले कंट्रोल फिर शिफ्ट एंड लास्ट में एंटर। तो जैसे ही एंटर प्रेस किया अभी हर सेल पे आप देख सकते हो फॉर्मूला लगा हुआ है, एंड फॉर्मूला भी किसके साथ है? कर्ली ब्रैकेट के साथ है। तो कर्ली ब्रैकेट मींस दिस इज एन एरे फॉर्मूला। आप इसमें कुछ चेंज करना चाहोगे वो चेंज नहीं करने देगा, क्योंकि वो फॉर्मूला वो सारे सेल एक टेबल के साथ लिंक है। और जैसे ही आप इसमें कोई वैल्यू चेंज करोगे नीचे टेबल में वो वैल्यू चेंज हो जाएगी। सो दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज वीडियो। टुडे वी लर्नड सॉर्ट, फिल्टर एंड ट्रांसपोज यूजिंग एरे फॉर्मूला। आई होप कि आप साथ साथ प्रैक्टिस जरूर करते हो। अगर कोई भी और फंक्शन आप सीखना चाहते हो या आपको कोई नॉलेज और चाहिए एक्सेल में, तो कमेंट में लिख के जरूर बताना। थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे।